In the operation, the troops displayed great tactical acumen and swiftness and ensured zero casualty to on troops. जब तक वहाँ पे उस एरिया में जितने भी दहशतगर्द मौजूद है उनका खात्मा नहीं होता तब तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। इंडियन आर्मी का फर्म रिजोल्व है ये कि जितने भी दहशतगर्द हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ऑनगोइंग ऑपरेशंस इन 11 RR area of responsibility. So we are here today to give you an overview of the ongoing operation. Operation Chhatru was launched on specific and credible intelligence inputs. On 9th of April, joint teams of Indian Army, the Jammu and Kashmir Police and the CRPF was launched in the dense forest of Kishtwar to nab the group of terrorists. In the operation, the troops displayed great tactical acumen and swiftness and ensured zero casualty to on troops. In the ensuing gun battle, the firefight, 3 terrorists were neutralized. Despite the weather challenges and the nighttime challenges, the troops displayed great professionalism and acumen. Also, the security of the civilians was our topmost priority, and the same was maintained during this execution of this operation. This operation also brought to the fore the seamless coordination between the Indian Army and the Jammu and Kashmir Police, especially the SOG. Rapid reinforcements were deployed in terms of the special forces with the help of Indian Air Force, as also to carry out real-time surveillance of the area. The UAVs, the drone, the night sights were employed basically to ensure that the terrorist doesn't escape from the area. This operation reaffirms the commitment of Indian Army to maintain peace and stability in the South Jammu, especially in the Pir Panjal area. Also, I'd like to mention that certain security measures have been instituted in terms of the rapid force capabilities, response capabilities, technological integration, and inter-agency seamless coordination to maintain peace and stability in the region. In the end, I'd like to thank the White Knight Corps and the GOC Delta Force for their guidance and support. Thank you very much. Jai Hind. जैसे ही सेक्टर कमांडर सर ने बताया, ऑपरेशन की डिटेल्स 9 तारीख को हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर, उसको हम कंक्लूजन स्टेज की तरफ लेके जा रहे थे। एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जब तक वहाँ पे उस एरिया में जितने भी दहशतगर्द मौजूद है उनका खात्मा नहीं होता तब तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। इस ऑपरेशन के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात हमने जिसका ख्याल रखा है वो है जो हमारे वहाँ पे सिविलियंस रहते हैं उनकी सिक्योरिटी की खास देखभाल करते हुए हमने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। और मैं उनकी तारीफ़ भी करना चाहूँगा कि वहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग हम सबको दिया है, सारी सिक्योरिटी सर्विसेज को वहाँ पे दिया है। एक
नायाब उदाहरण, एक नायाब नमूना इस ऑपरेशन के तर्ज पे सामने उभर के आया है। जिस तरह की तालमेल, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में देखा गया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। मैं सभी फोर्सेस को एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके अगर कोई भी सवाल है तो वो लेना चाहूँगा। फिर से एक बार ये कहते हुए कि इसी तरीके का कोऑर्डिनेशन, सिनर्जी हमारी आगे भी चलती रहेगी और जो भी यहाँ पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने की ताक से यहाँ पे आएंगे उनको इसी तरह के अंजाम को भुगतना पड़ेगा। सर, इस ग्रुप को आप काफी लंबे समय से ट्रैक कर रहे थे, क्या ये सैफुल्ला वाला ही ग्रुप है? सैफुल्ला मारा गया है, इस पे कुछ डिटेल्स? किसी भी डेड बॉडी की शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन व इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम करेंगे और जैसे ही किसी की भी शनाख्त होती है वो आपके सामने हम लाएंगे। अभी हम इस स्टेज पे नहीं हैं कि हम किसी का भी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म आपको कर सकें। Sir, how many total groups are roaming in Chenab Valley right now? How many total groups are roaming in Chenab Valley right now? नंबर्स ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया जितने भी यहाँ पे होंगे उन सभी का जब तक खात्मा नहीं करेंगे तब तक ऑपरेशन I'd like to mention here, the number doesn't matter. Whosoever comes with the aim of disturbing the peace and tranquility in the region will be neutralized. Sir, any kind of recovery? यस, रिकवरीज है, जैसे कि आपको मॉर्निंग में भी बताया गया है। M4 राइफल्स, AK सीरीज राइफल्स रिकवर हो चुकी हैं और भी जो उनके साथ एम्यूनिशन, आर्म्स और बाकी चीज़ें हैं वो रिकवर हो चुकी हैं। रिकवरी अभी फाइनल स्टेज में है लिस्टिंग के, जैसे ही वो हो जाती है उसके बाद आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। Sir, is there any local link established? Is any local body providing them support during logistics? ये सब इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं, जब इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी तभी आपके साथ शेयर की जाएगी, ये अभी हम स्टेज में नहीं हैं। पिछले साल से अभी तक सर काफी बार जो है एनकाउंटर हुआ, लेकिन कैजुअलिटी काफी ज्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेस की हो रही है, इसकी क्या वजह है कि किस तरीके का एडवांटेज जो है आतंकवादी हर बार लेते हैं? आप लेना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ सीख लेते हुए कुछ मेजर्स इंस्टीट्यूट किए हैं हमने और इसी की बनस्पत आपने देखा होगा कि जो भी हमारा ऑपरेशन हुआ है जिसमें हमने 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है और 0 कैजुअलिटीज टू ऑन ट्रूप्स। क्या क्या इंस्टीट्यूट मेजर्स इंस्टीट्यूट किए हैं, कुछ एक का जिक्र मैंने किया था, कुछ एक ऑपरेशन के कारण हम यहाँ पे आपके साथ में शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी का फर्म रिजोल्व है ये कि जितने भी दहशतगर्द हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। धन्यवाद। सारे आतंकवादी फॉरेनर थे कि कोई लोकल भी है? जैसे कि DIG साहब ने बताया एंड आई लाइक टू दिस थिंग एश्योर एज ऑफ नाउ दी शिनाख्त की नहीं गई है दिस थिंग जो टेररिस्ट की बॉडी है, और जैसे ही होगा आप लोग तक ये जानकारी पहुंचा दी जाएगी। सर, क्या बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।